Hello guys, I am Remedios Fernandez and I'm again back with a new video. In the previous video, I had shown you guys how to reach Buxa Fort, and in this video, I will be sharing interesting facts about Netaji Subhash Chandra Bose and show a few things about the Indian freedom struggle. Do watch the full video and share your views. Like, share and subscribe to my channel. Let's watch the video now. The views presented in the video are based upon the knowledge of our guide James Bhutia, and we have not verified the facts. The video can be quite controversial, and I request the viewers to share their knowledge, if any, in the comment section below. Finally, after a long trek, we reached the Buxa Fort. At the entrance, we found two stone marble engravings. The history goes on like this. The freedom fighters managed to write a letter to Rabindranath Tagore about their sufferings, and to which he replied. The letter and his reply are engraved here. I did try reading them. তোমার আবির্ভাব আজ বাংলার সীমান্তে নির্বাসনে বসিয়া আমরা বন্দী দল তোমার সেই জন্মক্ষণটিকে বন্দনা করি আর স্মরণ করি বিরাট মহাকালকে, যিনি সেই ফোনাটার দ্বারপথ উন্মুক্ত করিয়া এই দেশের মাটির প্রাণে তোমাকে অঙ্গুলি ইঙ্গিতে পথ দেখাইছেন। যেদিন জ্যোতির্ময় আলোক দেবতা তমসাতীরে প্রথম চোখ মেলিয়া চাহিলেন আলোক বহির আজ আত্মপ্রকাশিত। সেদিনকার একমাত্র সত্য নয়, সেই একের প্রকাশে সুপ্তির অন্ধকার তটে বিচিত্র বহু ও যে আপনাকে জানাইয়া উঠিয়াছে। হে বাড়ি উচারিল আলোকের কি অভিনন্দন। মৃত্তিকার ভিত্তিতে ভেদ অঙ্কিরি আকাশে দিল আনি। সম্মুখ শক্তি বলে শক্তি বলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী। After reading the letters, we moved step by step inside the fort. Every step we took was just like a step in the history of Buxa. Brother James kept us engaged, and he never let us down with his stories. Apart from the history, this place was a treat to watch for the eyes. Nature at its best. Truly, Duas region is completely unbelievable. Once you step inside, it is a completely different place. The beauty of the nature and the place hits you very hard. You will love it. Buxa is a must visit for everyone. Brother James was telling me about the damages caused by the floods, and Ahana's dad was busy interacting with the stray dog. There are many mysteries associated with the Buxa Fort, and it is believed that Netaji Subhash Chandra Bose was also captured and kept here by the Britishers. सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र बोस था यहाँ पर लिया था। कितने दिन के लिए वो थे? वो इंग्लिश लोग ने तो जब तक इंडिया उन लोग को हाथ में नहीं, माने उनको कैप्चर में जब तक नहीं लगेगा तब तक के लिए उनको यहाँ पर बंदी करके रखने के उन लोग को सोच विचार था। तो वो यहाँ से भाग गए थे? यहाँ से सुविधा करके भागने के चांसेस ही नहीं था, क्योंकि 7 ठो गेट था, 7 गेट है यहाँ से, और 7 गेट और जंगल बहुत डीप फॉरेस्ट था, तो उस समय में आपको कोई भी एनिमल्स खाने का चांसेस होता रहा। उसीलिए इन लोग ने इस जगह को इतना पसंद करके बना हुआ है
कि जाके यहाँ से कोई भी नहीं भाग सके, यहाँ से भागने का चांस ही नहीं था। तो इसी कारण से तो लास्ट मोमेंट जखन सुभाष चंद्र बोस जब आप इन लोग को इतना रिक्वेस्ट किया, इतना बात बोला, इनको इतना रिक्वेस्ट किया, इन लोग नहीं मान रहा है। लास्ट मोमेंट जो आजाद हिंद फोर्स गठन कर किया था, तो जर्मन और जापान में गया था। वहाँ का जो कंट्री का जो आदमी लोग थे, उन लोग ने बोला ठीक है आपको क्या हेल्प चाहिए, तो उन लोग ने हेल्प बोला, तो मुझे ऐसा चाहिए उसे चाहिए, कोई भी हो सकता है, उनको हेल्प किया। तब ठीक है आपको मैं हेल्प देने के लिए रेडी हूँ, आप क्या करना चाहिए करो। जब जर्मनी से जब घूम के आता 1944 साल अगस्त महीना में, क्या महीने में, उसी समय हम लोग को जो भारतीय आदमी को, जैसे कि अभी जो कोई बोलता है मोदी सरकार अच्छा नहीं है, कौन सरकार अच्छा नहीं, क्या बोलते हैं ना, उसी तरह का जो लेकिन काम कर रहा है, लेकिन अच्छा में जो काम कर रहा है, इन लोग को बैक बैटिंग किया। तो हम लोग को भारतीय का आदमी लोग ने सुभाष चंद्र बोस को दलाल करके, चमचा करके, रिपोर्ट जो इंग्लिश लोग ऐसा बैठ के सब खबर मिलता रहा। अच्छा, एक जगह में बैठ के सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ जा रहा है, टोटल रिपोर्ट इन लोग को देता रहा। जब रिपोर्ट देने के बाद जब लौटता रहा 1944 साल में जर्मन से, उस समय सुभाष चंद्र बोस को पकड़ लिया। खबर टू खबर हो गया, सब तो हम लोग को आदमी लोग खबर बोला। तो उस टाइम में बोला मुझे अब किस लिए पकड़ रहा है, मेरा क्या फॉल्ट है, मैंने क्या किया, मैंने क्या अन्याय किया। हाँ, जो अन्याय कर रहे आप लोग मेरा देश पर, मेरा आदमी के पर, मेरा जनता का पर आप लोग बहुत अत्याचारिंग कर रहे हैं, बहुत अन्याय कर रहे हैं। अपना देश तो आपका तो है, ये तो मेरा देश है, आप इधर मेरा बैठने का मेरा अधिकार है, आप अब लोग चला जाओ, मैंने क्या फॉल्ट किया, किस लिए मुझे पकड़ेगा। जब ऐसा बोला तब तो एक उस समय में एक आइन था, वुमेन्स जो राइट बोलते हैं, मानव, हाँ, उस आदमी को पकड़ने के लिए वो नहीं था आइन। तो उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने डिटेल्स बोल दिया, इसको उत्तर दे दिया कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा क्या फॉल्ट है, किस लिए मुझे अब पकड़ना है, वो सब बोल दिया। तब उस समय में जो आइन था, आदमी को पकड़ने की आइन नहीं था, तो किडनैप करके लाया था। जब किडनैप करके लाया, मालूम नहीं था, किडनैप करके उनने सोच विचार किया कि पहले से वो सुभाष चंद्र बोस जो है उन भाग भाग के आया था, लेकिन उनका पास अंतर्ज्ञानी था और बहुत दिमागी था, टैलेंटेड था और अच्छा से पढ़ाशुना भी किया था। तो उसी कारण से उनको पकड़ के जो ये बक्सा जेल है, 3 जेल बनाया, एक अंडमान जेल फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम बक्सा फोर्ट जेल, थर्ड टाइम नेपाल और बिहार का जो मिडिल में है बुक्सर जेल, बक्सर जेल, ये बक्सा फोर्ट जेल, वो बुक्सर जेल। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को पकड़ के हेलीकॉप्टर में उठा के ये बक्सा जेल में लाया था, जाके हम लोग टोटल इंडिया उन लोग को कैप्चर नहीं कर सकेगा। कैप्चर जब तक वो लोग झूठ मूठ करके जो एग्रीमेंट नहीं करेगा, तब तक के लिए उनको अंत तक उनको यहाँ पर बंदी करने उन लोग ने सब बातचीत करके लाया था। लेकिन यहाँ से भागने का चांस नहीं था। तो जो भूटानी लामा था, यहाँ पर मेरा ग्रैंडफादर भूटानी जो लामा लोग था, इन लोग भी इंग्रेज को शासन में रखा था, काम करने के लिए, खाना पकाने के लिए, सफा करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, उन लोगों को सेवा करने के लिए, सब जेल के अंदर काम करने के लिए। और संतला बाड़ी से पीठ में माल उठा के लाना पड़ता था, एक चाकर हिसाब से रखा था। तो ये भूटानी जो अंतर्ज्ञानी लामा था, इस लामा ने सुभाष चंद्र बोस को हेल्प किया था। अच्छा, जब उन लोग देखा तक हो गया, तब उसमें अंतर्ज्ञान में बात करने लगा। जब अंतर्ज्ञान में बात कर रहे हैं, तो इस लामा ने सोचा इतना महान आदमी कैसे क्यों पकड़ के लाया। और सुभाष चंद्र बोस ने मन से बोल रहा है, अंतर्ज्ञान से बोल रहा है, ये लामा से बात और कोई भी मुझे नहीं बचा सकेगा, ये लामा ही मुझे बचा सकेगा, इसी तरह का बात हो रहा है। तो ये जो भूटानी लामा है, ये भूटानी लामा है, सुभाष चंद्र बोस को हेल्प किया। कैसे? जब लामा का साथ जब बातचीत हो गया वो सेकेंड थर्ड सेल में, तो लामा को बोला मैं यहां तुम सबको लिए आया हूं, अब मुझे बचा सकेगा, अब मुझे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह से सुभाष चंद्र बोस भाग के आया था,
लेकिन यहाँ से भागने का चांस ही नहीं आता। तो इस लामा को पकड़कर, लामा को जो अंतर्ज्ञानी समझ गया, उसीलिए उसको क्वेश्चन करा कि मुझे आप यहाँ से छोड़ा सकेगा? तो लामा ने बोले नहीं सकेगा। ऐसे करते 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 3 दिन 4 दिन के बाद लामा ने मेरा जो मेरा फादर था, मेरा उसका ग्रैंडफादर को बोल दिया। वो 2 नंबर 3 नंबर सेल में एक आदमी है, उनने ऐसे ऐसा बात बोल रहा है, मुझे क्या करूं? तो मेरा जो ग्रैंडफादर ने बोला ये बात किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, अगर बोले तो सब बर्बाद हो जाएगा, किसी को नहीं बोलना। तो लामा सुभाष चंद्र बोस को हम मालूम नहीं है। तो फिर बोला तुम्हारा जो गला जाने से भी तुम ये बात किसी को नहीं बोलना, लेकिन मुझे यहाँ से शिफ्ट कर सकेगा? ऐसा होते थे 4 दिन 5 दिन 6 दिन में। तो वो लामा जो है उसको भी मन में सोचने लगा, बहुत कुछ सोचने लगा, खाली इसका बाद ये मन में आता है, इसके बाद ऐसा होते प्राय 10 दिन के बाद ठीक है अब देखता हूं, मैं देखता हूं, हो सकता है सुभाष चंद्र बोस के पास एक कोई भी सोना का ये था, रखो तुम रखो, लेकिन मुझे यहाँ से करना है, मैं यहाँ से जाऊंगा, सबके लिए भलाई होगा। इन लोगों को शासन में हम लोग नहीं बढ़ने चाहिए, ये हम लोग को देश है, बहुत कुछ बोला है। तो ये लामा जब सोच के तो वो समय है ना, समय वो उसको कैलकुलेशन करने लगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी भी छोड़ सकता हूँ, आपको हेल्प कर सकता हूँ 2 साल के बाद भी और 5 साल के बाद भी, लेकिन कौन समय होगा आपको मैं बता नहीं सकता, नहीं बता सकेगा, श्योर नहीं होगा। अभी भी हो सकता है, लेकिन 2 वर्ष पीछे भी हो सकता है और 5 वर्ष भी हो सकता है, लेकिन ये समय आपको मैं बता नहीं सकूंगा। कौन समय मुझे मिलेगा उस समय आपको मैं सही हेल्प करूंगा, लेकिन सिर्फ ओनली 5 मिनट्स आपको। तब ऐसा ठीक, तो काल भी आ रहा है, पूछ रहा है, जब खाना देता है, जब सफा करते सब बोल रहा है, लेकिन उनको तो ये चाहना है ना कब से मैं यहाँ से बाहर हो जाएगा, कैसे वही सोच था। तो लामा है सुभाष चंद्र बोस, जहाँ जितना भी यहाँ बंदी लोग, उनसे भी ज्यादा टेंशन हो गया लामा को ऊपर। अच्छा, लामा का मूवमेंट दूसरा उसका अलग हो गया। तो जो समय है जो वो बार करता है, वो कौन समय बंद होता है, कौन समय आदमी कम होता है, और संतला बारिश जो पीठ में माल जिनिस पत्र जो लेके पीठ में लेके जो खच्चर जो घोड़ा वाला जो आता है, कब समय कितना समय में घूरता है, कितना समय में आता है टोटली, और कौन से जी कहाँ बैठ रहे, कौन ऑफिसर कहाँ जा रहे, टोटल ऐसा कैलकुलेशन को करते प्राय 1 महीना हो गया, लेकिन नहीं पा रहा है चांस। अच्छा, लेकिन चांस नहीं पा रहा है। लामा पागल जैसा हो गया, काम भी करना पड़ता, फिर उन लोगों को बात भी सुनना पड़ता, अगर वो लोग को बात नहीं मानेगा तो फिर बहुत मारता रहा, अच्छा। साबुक मारता रहा, ऐसा शास्त्री में रखता रहा, बहुत खतरनाक। जेल में जब जितना भी कैदी लोग सब काम करना पड़ता रहा। तो मेरा ग्रैंडफादर ने बोला तुम ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्या हुआ, मुझे अंदर से क्या हो रहा है, लेकिन मैं किसी को नहीं बता सकता हूँ, कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं है, बोल रहा है। तो समय जो है कैलकुलेशन कर रहा है, 1 महीना हो गया लेकिन समय नहीं पा रहा है, लेकिन वो बोल रहा है करेक्ट समय देगा, 5 मिनट के अंदर समय दूंगा, आप उतने आप जाने से जा सकते हैं, लेकिन नहीं सकेगा, कौन दिन होगा हम अभी बता नहीं सकेगा। तो समय जो जमा करते सब हिसाब करने लगा कि वो कहाँ बैठता है, क्या करता है, कौन समय सेंट्री कहाँ जाता है, टोटली समय जो बार करने लगा। ऐसा होते 1.5 महीना का बाद सुबह 11 बजे संडे का दिन में समय मिल गया। उसी समय जो पीछे का जो दरवाजा, एक विंडो है, जो जब सिंगल दिया तो उनका अपना कपड़ा उसको दे दिया, और उसका कपड़ा क्या उधर लपट के रख दिया, क्या कर दिया। तो वहां से बाहर के पीछे से होके जो यहाँ संतला बड़ी जो जिनिस पत्र जो लेके आता रहा, जो हाथी जो खच्चर जो दल में 20-25 जन के दल में जब आया, 5 मिनट के अंदर उसमें जो दल में घुसा दिया। जो लामा का ड्रेस पहन के, सब लामा लोग एक ही ड्रेस पहनता उस समय में, तो रेड कलर का ना, आप आपको जींस पहना है, उनका अलग मेरा अलग है। उस समय ऐसे नहीं था, जो कई दिनों को ड्रेस अलग था, लामा का जो ड्रेस था वो अलग था। अच्छा, इसी तरह का था, मैंने एक ही कपड़ा ही होता रहा। तो इस लामा को अंदर में घुसा दिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का जो फेस वो बदली होता है, चेंज होता है, बेला में चेंज होता है, उनका अपना रूप बदल लेता था। तो ये लामा भी ऐसे था। ठीक सुबह 11 बजे समय, सुबह ब्रेकफास्ट देके आके उसको घुसा दिया, चला गया।
लामा चुपचाप, लेकिन लामा को मन में डूब डूब कर रहा है, डर लग रहा है। ये रात चला गया, संडे को रात चला गया। सुभाष चंद्र बोस इधर में कहाँ चला गया चला मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं है। अच्छा, जो यहाँ सेंट्री है वो तो है, सेंट्री को भी मालूम नहीं है कि चला गया। जब मंडे को मॉर्निंग टाइम में जब यहाँ पर जब काउंटिंग करने के लिए आया, देखने के लिए आया, जाते क्या नहीं है, तो सुभाष चंद्र बोस के बोस बोल के नहीं बुला, उनको नहीं बुला, इंडियन क्या लीडर बोल के बुलाता रहा। एक इंडियन क्या लीडर बोल के पुकारता रहा, और सुभाष चंद्र बोस बोल के नहीं जानता रहा। हम लोग को भारत के आदमी जानता रहा कि सुभाष चंद्र बोस बोल के, लेकिन जो इंग्लिश लोग ने सुभाष चंद्र बोस बोल के नहीं बुलाता रहा। और इंडियन क्या लीडर बोल के बुलाता रहा, ये भूल गया मेरा। अच्छा। नहीं है। अरे इसको जो सेंट्री को पूछा, नहीं है। अरे हम तो सुबह में देखा है, उन लोग ठीक नाश्ता दिया, सब कुछ दिया, वो चला गया। और इस सेल में आलदा लोग था, आदमी था, उस तरफ में आलदा था, और जो सुभाष चंद्र बोस में आलदा ही था। तीन तो सेल में तीन आदमी था काम करने के लिए, खाना पीना देने के लिए आलदा ही था, उनको सेवा करने के लिए। लेकिन इनको अच्छा से रखा था, सुरक्षित करके, क्योंकि अगर एक कुछ हो जाने से ये लोग को बर्बाद हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस से बहुत डर खाता रहा इंग्लिश लोग। गांधी नेहरू से नहीं डर खाता रहा, सुभाष चंद्र बोस से बहुत डर खाता। लेकिन उनका पास बहुत अंतर्ज्ञानी था और लेखा पढ़ाई भी बहुत अच्छा था। आईसीएस सिविल सर्विस किया था। और भाषा, जितना भाषा उनने बुझ पाता रहा, बोल पाता रहा, 30 भाषा, माने भाषा के लिए उन लोग प्रॉब्लम नहीं होता रहा। 30 भाषा बुझ पाता रहा और बोल पाता रहा। अब आप मानिए, सोचिए, तब जब चेकिंग आया, तब जब बोला तो कहाँ गया नहीं है, नहीं। तब जो यहाँ पर जो सेंट्री है, इन लोग को पूछने लगा, काल का रजिस्टर में जो दिखा है कौन था, बुलाया, बताया। सब तो डर से ऐसा कमने लगा, ऐसा नहीं सकता रहा, नीचे करके इंग्लिश सब में बहुत डर थे, मतलब जो सिर नीचे करके बोलना पड़ता रहा, ऐसा नहीं सकता रहा। ब्लास में जो लामा है, जो खाना देता है, इस लामा जो उसको देखभाल करता है, वो लामा को बुलाया। तो लामा ही था मेन तो लीडर तो लामा ही है। लामा को तो जब वो बना, तब तो उसका सोच विचार दूसरे हो गया, उसको मूवमेंट अलग हो गया, क्योंकि मैं तो गिल्टी हूँ, हो गया ना, तभी वो एकदम मजबूत हो गया। हम सुबह में दम दिया, ऐसा सब कुछ बोल दिया, तो जब गिल्टी हो गया उसको पकड़ लिया, उसको बहुत मारा है बोलता है, बहुत मारा बोलता है उसको। जब इसको पकड़ लिया और 200 सेंटी को कुछ नहीं किया। जब लामा को जब पकड़ लिया, जब प्रूफ हो गया यही था, ये समय था, सब बोल दिया, तो लामा को खींच के लेके उधर में बहुत मारा बोलता है, जूता से चाबुक मारा बोलता है, पूरा मारा बोलता है। लेकिन लामा ने बात नहीं फुटाया। अच्छा, नहीं बोला कि हमने ऐसे किया वैसे किया, नहीं बोला। उसको इतना मार दिया, इतना मारा, उसके पास बहुत अन्याय किया, टर्चरिंग किया, लेकिन लामा ने एक बात भी नहीं बोला है। उस समय से बोला है, तुम्हारा गर्दन जाने से तुम ये बात किसी को नहीं बताना, बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। Brother James is explaining us about the isolated cells in the fort. ये सीधी बात में बना हुआ है, पहले पत्थर से बना हुआ है। जो एक अंदर का ये है, ये 1978 में बना हुआ है, 1978 में बना हुआ है। पहले का नेचर ये था, ये बाद में बना हुआ है। जो किसी गोस्वामी को अंडर में जेल था, उस टाइम में बना हुआ है। इसको थोड़ा ऊंचा करके बना, पहले छोटा करके था। और यहाँ का चौकी जो है, आपको हम प्रूफ लफ्जा में जाके देंगे, प्रूफ एक करके चौकी था, उस तरफ एक चौकी था, उस तरफ एक चौकी था। ये दरवाजा था, यहाँ पर विंडो था, लेकिन सब समय बंद होता है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ में वो एक बाउंड्री है और वहां पर एक ही गेट था। यहाँ से जाने के बाद सेक्रेटरी सेंट्री यहाँ भी था, तो उसी में जाने का चांसेस नहीं था। और ये यहाँ पर हम लोग को लेट्रिन बाथरूम का पॉइंट 1 ठो 2 ठो 3 ठो है। वो वाटर टैंक है, पानी का टैंक है, वहां पर पानी स्टॉक होता रहा। और वहां से पानी, एक व्हील था, जब पानी छोड़ता रहा वो व्हील में लगता रहा, तो जो व्हील घूमने लगता रहा, तो उसमें एक बत्ती का जो लाइट का लोग ने किया था। और ये पानी यहाँ वहाँ टैंकी में जाके वहाँ पर जमा के वहाँ पर से डिस्ट्रीब्यूट होता रहा पानी। और ये जो
और ये है आपको प्रफुल्ल चाकी बोलते हैं उनका सेल ये प्रफुल्ल चाकी प्रफुल्ल चाकी। और ये है भागा ज्योतिर्मय। बागा जुटीन बागा जुटीन रेलवे स्टेशन है हम लोग का साइड में। ओ ये भागा जितने का सेल आई है। आगे का नेचर में देखेंगे इसी तरह का बना हुआ है। चूना भट्टी जो हमने ने दिखाया वहाँ का जो पत्थर का वो चून होता है, वो चून वहाँ से मिला के बना के इसको यहाँ का पत्थर को काट के बना हुआ जेल है ये। 1906 साल से जेल को शुरू किया था। अब प्राय आपको 10 वर्ष के लगा है। और ये है सुभाष चंद्र बोस का सेल। ये वाला हाँ। ये सुभाष चंद्र बोस का सेल। ये उन लोगों को नहाने का लेकिन ये कैदी का हाँ? कैदी लोग कहाँ जाता था? नॉर्मल कैदी लोग अलग है। नहीं इन लोग यहाँ जब पे जो कैदी इन लोग हाँ। बाथरूम जाना होता हाँ। है, तो ये जो गेट है ना वहाँ पर सेंट्री बैठता रहा सब समय। जब उन लोग ने बुलाता रहा तब सिर में पट्टी बांध के ऐसा अंधाकार बना के ऐसा घुमा के इससे तरफ से ले जाता रहा। अब फिर फिनिश होता रहा, फिर पट्टी बांध के घुमा के लाता रहा। तो यहाँ पर टीम में नहीं जानता रहा कि वो यहाँ है मैं यहाँ हूँ, ऐसी तरह से चांसेस नहीं दिया है। इसीलिए वो लोग मजबूत होने नहीं सका था। अगर जानने से ना बुझे था सब जुलूस करता ना तो कुछ होता था, लेकिन इसी तरह का चांसेस नहीं दिया है। दिमाग था हम लोग को, देश के पैसा से हम लोग को दिमागी हो गया था। ये सेंट्री पॉइंट है। ये हवा पे आ सकता है, ऑक्सीजन पे आ सकता है, हवा सब कुछ भी लाइफ भी आ सकता है। उधर भी चले ये तो उन्हीं का बना हुआ लगता है। हाँ उस समय का बना हुआ है। उस समय का पत्थर से बना हुआ मजबूत है। उन लोगों को कंट्री से नहीं लाया पत्थर, उन लोग को यहाँ का पत्थर है। यहाँ का पत्थर, यहाँ का जो पत्थर का चून तैयारी बना के बना हुआ है। ये देखिए ये है पहले का ही। After giving us a detailed tour of the cells, Brother James did something very unique. This place was once a helipad and used by the Britishers during the World War II. Now this place is abandoned, and in this place now we find tourists coming and relaxing over here. After showing us the cells, Brother James took us to the remaining unseen areas of the fort, most of which is covered with vegetation. वर्षा के समय में जब पसीना होता है ना ऐसा करता है, पूरा नरम है, ये करता है। ये जंगल में ऐसे नॉर्मल होता रहता है। ये हड्डी से पता और कोई भी नहीं। वाह बीज बोला है तू। इससे भी नरम होता है, अच्छा जगह में उनसे नरम एकदम नरम होता है। यहाँ थोड़ा मट्टी नहीं है ना, उसीलिए थोड़ा ये हार्ड लगता है। बरसात के सीजन में अच्छा होता टिश्यू है। पत्र फूल एगुलो ना की हाँ कॉटन ये नाउ कि गुल्लू मुल्लू रे नरम बेस। Walking through the ruins made me realize that eventually nature is all powerful. This once used to be a kitchen. This place is also believed to be haunted. If you don't believe me, then listen to this. हाँ, तो आज तक हम लोग ये सुबह में या शाम में यहाँ पर अंदर में नहीं आता है, डर लगता है। वो आवाज़ करता है, बहुत तरीका का आवाज़ होता है। तो यहाँ का जो लोकल आदमी वो लोग भी नहीं आता है। हाँ, तो यहाँ पर कोई भी ये अपना कर नहीं सके। ये सरकारी अंडर में ये जेल खाना कोई भी नहीं बैठ सकते यहाँ पर। अच्छा। तो
कभी कभी यहाँ पर आदमी रोने लगता है, सुनता है दिन में कभी। जब चुपचाप हो जाएगा ना, कोई भी हालत चल रहा है तो अकेला आने से वहाँ पर कोई आदमी बात कर रहा है या तो कोई आदमी रो रहा है, ऐसे सुनता है। ऐसे नहीं। It is hard to believe that once hundreds of soldiers lived here. The video about the history of the Buxa Fort ends here. The history is pretty much unknown and the story of Brother James might not be credible enough. The video might be boring, but my objective was to throw some light on the history of the neglected Buxa Fort. I request all of you to visit this place at least once. Share your views about this video. In the next video, we are visiting the Lepchaka village, also known as the Heaven of Duas.